اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک کمرے میں چند بچے بیٹھے ہوں، ان کی بائیں طرف 40 انچ کی LED پر کلر فلمیں اور کارٹون وغیرہ چل رہے ہوں، اور دائیں طرف ایک بلیک اینڈ وائٹ 14 انچ کے ٹی وی پر ایک قاری صاحب قرآن پڑھ رہے ہوں۔ گو کہ قرآن مجید ہر چیز سے افضل ہے، اس کی تلاوت سننا ثواب ہے، لیکن آپ جتنا مرضی ان بچوں کو ڈرائیں، دھمکائیں، سمجھائیں، ڈانٹ لیں، لیکن ان کی گردن LED کی طرف ہی مڑی رہے گی۔ یہی حالت آج ہماری ہے۔ اسلام کے جو اصل کلرفل مناظر تھے کہ جن کے سامنے اس کائنات کی ہر رنگین ہیچ تھی، انہیں بڑی سمجھداری بلکہ چالاکی سے تبدیل کر کے ان کی جگہ بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی چلا کر ہمارے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ ہزاروں لاکھوں انبیاء اور اولیاء کرام اور جانثاران توحید کی زندگی پر نظر کریں، آخر ان کے پیش نظر ایسا کیا تھا کہ جس کے لیے انہوں نے دنیا کی ہر اٹریکشن اور آسائش کو ہیچ سمجھتے ہوئے جوتے کی نوک پر رکھا؟ دوستو، وہ دراصل حکومت الہیہ کے منظر تھے، جو ایک نہ ختم ہونے والا دور ہے اور اتنا خوبصورت، پروقار اور عالی شان دور ہے کہ جس کے سامنے اس دور کی رنگینیاں تو دور، خود اپنی زندگی بھی ہزاروں بار انسان بخوشی قربان کرنے پر تیار ہو جائے، کیونکہ وہ دور لاکھوں سال کی ابدی زندگی پر مبنی ہے، اور وہ مرنے کے بعد کسی اور جہان میں جنت کی صورت میں نہیں بلکہ اسی زمین پر ملنے والا ہے۔ وہ دور کیسا ہوگا، کب شروع ہوگا، یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ میں یہ سب کچھ انتہائی تفصیل کے ساتھ عرض کرنے والا ہوں، جس میں سے سب سے پہلے وہ تمام پیشین گوئیاں عرض کروں گا جو اس دور کے بارے میں فرمائی گئی تھی، جس دور میں اس وقت ہم داخل ہو چکے ہیں، اور کسی لمحے بھی ابدی خوشیوں کے شادیانے بچ سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اب ہم اپنی اصل بات کو آگے بڑھانے کی جانب، کہ جہاں پچھلی ویڈیو میں ہماری بات کا اختتام ہوا تھا۔ دوستو، ہم بات کر رہے تھے ہندو مذہب کی۔ ہندو مذہب اس دھرتی پر موجود قدیم مذاہب میں سے ایک ہے، اور یہ آرین کا مذہب ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جو نینوا اور بابل سے چل کر ہندوستان کی زمین پر آباد ہوئے۔ اللہ کے قانون ہدایت کے مطابق ان میں بھی متعدد انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، کتابوں اور صحیفوں کا نزول ہوا، اور ان انبیاء کرام علیہم السلام نے لوگوں کی ہدایت کی، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ کل قوم ہاد، کہ ہر قوم کے اندر ایک ہادی بھیجا جاتا ہے۔ ان میں آنے والے انبیاء کو اوتار کہا جاتا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ آج ان کی تبلیغات کو مسخ کر کے جو خدائے واحد کے لیے تھی، جیسا کہ تمام انبیاء علیہم السلام کرتے آئے تھے، آج انہی کے بت بنا کر ان کی پوجا کی جا رہی ہے۔ ان کے مشہور ترین اوتار میں کرشن جی مہاراج، رام چندر جی، راجا دیو جی، منو جی ہیں۔ ان کے پاس 4 کتابیں یجر وید، سام وید، رگ وید، اتھر وید ہیں۔ ان ویدوں میں شریعت کے متعلق بات چیت ہوئی ہے، رسمیں اور ان کے طریقہ کار پر بات ہوئی ہے، اور 18 پران ہیں۔ پران یعنی انہیں آپ قصص الانبیاء کہہ لیں۔ اس کے علاوہ عرفان کے حصول پر بھگوت گیتا ہے۔ مہا بھارت جنگ کے دوران مشہور جنگجو ارجن اور کرشن جی مہاراج کے درمیان جو مکالمہ ہوا، اس کو بھگوت گیتا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنیشد ہے، جس میں نظمیں ہیں جن کی تعداد 108 ہے۔ اپنیشد کا مطلب ہے مرشد، یعنی گرو کے نزدیک بیٹھ کر یا قدموں میں بیٹھ کر گیان حاصل کرنا۔ اس کے علاوہ متعدد صحیفے ہیں جن کی تعداد سامی مذاہب کے برابر ہے۔ دوستو، ہندو مذہب میں آخری مسیحا کا کنسیپٹ بالکل ایسے موجود ہے جیسے اسلام اور دیگر مذاہب میں موجود ہے۔ ان کی کتابوں اور پران میں سے آخری پران کا نام کالکی پران ہے، اور آنے والے مسیحا کو وہ اپنی زبان میں کالکی اوتار کہتے ہیں۔ کالکی اوتار وشنو یعنی خدا کا اوتار ہوگا، جس کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ سفید گھوڑے پر سوار ہوگا، اس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی جس سے وہ پاپیوں کا سروناش کرے گا، کل یگ یعنی برائی کے زمانے کو سچ یگ میں تبدیل کرے گا، غریبوں اور مظلوموں کا ساتھ دے گا، اور پورے جگ میں عدل قائم کر دے گا، اور اس کے دور میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پئیں گے، اور پوری دنیا پر اس کی حکومت ہوگی۔
महाराजा काल के अवतार के मुकाबले में उनका दुश्मन होगा जिसका नाम काली राक्षस होगा, जो तमाम शरीरों का मब्दा, शैतानी खुदा, अधर्म काल जिस्म होगा। जुआ खेले जाने वाले मकाम, शराब खाने, इस्मत फरोशी, कत्ले आम वाली जगह पर उसका मस्कन होगा। उसके हाथ में तलवार और उसकी सवारी गधा होगी, और दुरक्ती उसकी बहन ही उसकी बीवी होगी। दोस्तों, महाराजा काल के अवतार के बाकायदा मंदिर बनाकर उसकी पूजा की जाती है। शुमाली हिंदुस्तान और नेपाल वगैरह में काफी मंदिर हैं। और एक मजे की बात यह है कि जिस तरह इस्लाम में मुतअद्दिद लोगों ने इमाम महदी अलैहिस्सलाम होने का झूठा दावा किया और कुछ लोगों ने उनके नायब होने का दावा किया, बिल्कुल ऐसे ही हर दौर में मुतअद्दिद लोगों ने महाराजा काल के अवतार होने और उनके नायब होने के झूठे दावे किए हैं। दोस्तों, मुख्तलिफ अंबिया अलैहिस्सलाम ने जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में लोगों को जिंदगी गुजारने का सबक दिया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो नबी हैं कि जिन्होंने दौरे आखिरुज़्ज़मान के साहिबुज़्ज़मान अजलल्लाहु फर्ज शरीफ का मुंतज़िर बन के जिंदगी गुजारी और हमें समझाया कि उस मसीहा के आने तक जिंदगी गुजारनी कैसे चाहिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद बहुत सारे लोगों ने उनके जेली नायबीन होने का दावा किया और बहुत सारे लोगों को गुमराह किया, और आज भी दज्जाली कुव्वतें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में फिल्में बनाकर लोगों को उनके बारे में गुमराह कर रहे हैं और उनकी जिंदगी के असल पहलू यानी मुंतज़िर आखिरुज़्ज़मान को छुपा जाते हैं। इसकी बिल्कुल बात ही कोई नहीं करता। आपने अपनी जिंदगी में ही अपने हवारीन को आगाह फरमाया था कि झूठे नबियों से खबरदार रहो, जो तुम्हारे पास भेड़ों की शक्ल में आते हैं मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़े जा सकते हैं? जिस तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है, अच्छा दरख्त बुरा नहीं ला सकता और ना ही बुरा दरख्त अच्छा फल ला सकता है। जो दरख्त अच्छा फल नहीं ला सकता वो काटा और आग में डाला जाता है, बस तुम उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। एक जगह फरमाया, झूठे अंबिया को अल्लाह मबूस करता है क्योंकि जिन्होंने सच्चों की तकजीब की हो सजा के तौर पर वो झूठे नबियों की पैरवी करेंगे। और बिल्कुल इसी बात का इजहार कुरान करीम में भी किया गया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तबलीग का मरकज आने वाले खुदा की बादशाही रही है। जैसा कि बाइबल ऑफ मैथ्यू में है कि उन्होंने तबलीग का आगाज इन अल्फाज से किया, लोगों तौबा करो, आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। हो सकता है इस फिक्रे पर किसी को लगे कि उन्हें तो गए हुए भी 2000 साल हो गए हैं। दोस्तों, ये नुक्ता समझने वाला है कि अगर किसी काम का लाखों साल से इंतजार हो रहा हो और फिर पता चले कि उसमें अब सिर्फ 2000 या 2020-25 साल बाकी रह गए हैं, तो फिर वो वक्त करीब ही समझा जाता है, उसको दूर कोई नहीं समझता। और आज तो हम बिल्कुल उस दौर के अंदर मौजूद हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इसी तरह बाइबल ऑफ मार्क जीसस इन गैलीली के ज़िमन में लिखते हैं कि अब वक्त खत्म हो चुका है, खुदावंद की बादशाही आ गई है, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। उनकी तबलीग का मरकजी नुक्ता ही खुदावंद की बादशाही था। उनका कहना था कि ऐ लोगो, खुदावंद की बादशाही सर पर आन पहुंची है, तौबा करो और नेक अमाल बजा लाओ। आपने खुदावंद की बादशाही के लिए नेक अमाल करने की तरगीब दी। दोस्तों, असल बात जो मैं करना चाहता हूं वो ये है कि उन्होंने अगले जहान का तसव्वुर नहीं दिया, बल्कि इस मौजूदा जहान में ही इसी जमीन पर सजा जजा को साबित किया। क्योंकि जुल्म अगर इस जगह हुआ है तो फिर जालिम को सजा और साबिर को जजा भी इसी जमीन पर मिलनी चाहिए। अगला जहान तो इनाम का है, ना कि जजा और सजा का होगा। इस पर मैं आगे तफसील से बात करूंगा, क्योंकि दरअसल ये वो नुक्ता है जिसने दज्जालियत को अरूज और हमें नाउमीदी में गर्क कर दिया है कि पता नहीं मरने के बाद क्या होता है, इसलिए इस जिंदगी के मजे लूट लो। बात हो रही थी जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की। किसी शख्स ने उनसे दुआ के बारे में पूछा कि कौन सी दुआ करनी चाहिए, तो फरमाया दुआ इस तरह करो, ऐ हमारे बाप जो आसमान पर मुदब्बिर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तुम्हारी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमानों पे पूरी होती है वैसे इस जमीन पर पूरी हो। आज की रोटी हमें आज दे, हमारी रहनुमाई फरमा, हमें आजमाइश में ना डाल और हमें बुराई यानी नाफरमानी से बचा। नाफरमानी ही दरअसल बड़ी बुराई है। फिर एक जगह फरमाया, तुम उस खुदाबंद की बादशाही तलब करने को अव्वलियत दो।
फिर एक और जगह फरमाया दुआ से उकता कर छोड़ देना इस्तजाल है। तुम मुसलसल दुआ करो, दरवाजा खटखटाते रहो, एक दिन जरूर खुलेगा। तुम दुआ करते रहना, हिम्मत ना हारना। अलाइम के मुतालिक बताया वो दिन बहुत परेशान कुन होंगे। हर तरफ दहशत, खौफ व हरास, कत्ल व गारत, अहले हक पर आजमाइश और बेदीनी होगी। जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही निजात पाएगा। उस दौर में इतनी बेदीनी होगी कि बहुत सारे लोगों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। वो मुसीबत के दिन अगर घटाए ना जाते तो हलाकत से कोई ना बच पाता, मगर वो दिन बरगुज़ीदों के लिए घटाए जाएंगे। आखिरी जंग के मुतल्लिक फरमाया, जब यरूशलेम को फौजों में घिरा देखना तो समझ लेना इसका उजड़ना जरूरी है, क्योंकि वो इंतकाम के दिन होंगे। समुद्री तूफान की लहरों जैसा शोर होगा, उस दिन सूरज तारीक होगा। फिर फरमाया, उन मुसीबतों के आयाम के फौरन बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी देना बंद कर देगा। सितारे आसमान से गिरेंगे, आसमानी ताकतों को हिलाया जाएगा। उस वक्त धरती के सारे कबाइल मातम करेंगे। उस वक्त आसमान पर इब्ने आदम का निशान जाहिर होगा और फिर वो आसमान से इब्ने आदम को बादलों के साथ बड़ी कुदरत और अजीम जलालत के साथ उतरता देखेंगे। और वो अपने फरिश्तों को एक ट्रम्पट जो बुलंद आवाज वाला होगा देकर भेजेगा अपने बरगुज़ीदों को बुलाने के लिए, और फरिश्ते चारों तरफ से बरगुज़ीदों को जमा कर लेंगे। आसमान से जमीन तक जब ये बातें होने लगें तो सीधे होकर अपने सरों को ऊपर उठाना, इसलिए कि तुम्हारी निजात नजदीक होगी। मुकाशफा यूहन्ना में है कि जिसने सबसे पहले कुर्बानी दी वो कोहे सहून पर खड़े हैं और उनके साथ 1,44,000 और भी हैं। सामने तख्त लगा हुआ है और मैंने समुद्रों की लहरों के शोर की तरह आसमान से आवाज सुनी जिसमें बहुत गरज थी, और मैंने ऐसी आवाज सुनी जैसे बहुत सारे साजीने मिलकर साज बजाते हों, और मैंने देखा कि सारे एक नया गीत गाने में मसरूफ हैं, और वो ऐसा गीत था जो उन 1,44,000 के सिवा कोई सीखना भी चाहे तो ना सीख पाता। उस वक्त रब्बुल अफवाज शहनशाह आखिरुज़्ज़मान का तख्त आसमान से नाजिल होगा। अफवाज मलकूत उनके साथ होंगे। जब वो मुकद्दस तख्त बैतुल मुकद्दस पर उतरेगा तो उस वक्त उस अजीम तख्त के दाहिनी तरफ एक कुर्सी लगेगी। रब्बुल अफवाज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उस कुर्सी पर बिठा देंगे और फरमाएंगे अपनी उम्मत का फैसला खुद फरमाएं। तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वो फरमान पूरा होगा जो उन्होंने आखिरी रात सरदार काहिनों वगैरह से फरमाया था कि मैं तुमसे कहता हूँ इसके बाद तुम मुझे कुदरत यानी रब्बुल अफवाज के दाहिनी तरफ तख्त पर बैठा हुआ देखोगे। यूहन्ना अपने मुकाशफा में मजीद लिखते हैं कि जब दोनों तख्त लग जाएंगे तो उस वक्त उनके जुमला गुलाम उनकी इबादत में मसरूफ होंगे। इसके बाद फरमाया, जब इब्ने आदम जाहो जलाल के साथ आएगा और सभी मलकूत उसके सामने होंगे और वो उनके सामने अपने जलालत के तख्त पर बैठेगा, सारी कौमें जमा होंगी और वो अच्छों को बुरों से ऐसे जुदा करेगा जैसे चरवाहा शाम को बकरियों को भेड़ों से जुदा करता है। अच्छों को दाहिनी तरफ खड़ा करेगा और बुरों को बाहिनी तरफ। फिर वो दाहिनी तरफ वालों से बादशाह की हैसियत से फरमाएगा, आओ मेरे बाप की रहमत के साथ और हकूमत जो तख्लीक के आलम के वक्त से तुम्हारे लिए बनाई गई थी इसे मिरास बना लो। बुरों को जहन्नम रसीद किया जाएगा। फिर एक अब्दी हुकूमत का आगाज होगा जिसका वादा अल्लाह ने अपने नेक लोगों से फरमाया था। इस जमाने के बारे में बाइबल में यूहन्ना का मुकाशफा लिखा हुआ है कि मैंने देखा कि एक नया आसमान और एक नई जमीन पहली जमीन और आसमान से बदल दिए गए हैं। कुरान करीम में भी इस बात का जिक्र है कि तबद्दल अर्ज इला गैरिल अर्ज। समंदर नहीं था। मैंने देखा कि नया शहर मुकद्दस यरूशलेम आसमान से नीचे नाजिल हो रहा है, अल्लाह की तरफ से ऐसा सजा हुआ है जैसे दुल्हन अपने शौहर के लिए सजी होती है। फिर मैंने एक बुलंद आवाज तख्त कुदरत से सुनी, अल्लाह इंसानों में रिहाइश पजीर है और इंसानों में अल्लाह सकूनत पजीर रहेगा, और वो लोग अल्लाह के अपने बंदे होंगे और अल्लाह उनका अपना अल्लाह होगा और साथ होगा, और वो अल्लाह उनकी आंखों के सारे आंसू पोंछ डालेगा। फिर मौत ना रहेगी, फिर मातम ना होगा, दर्द ना होगा, गिरिया और बुका ना होगा,
अल्लाह के करम से सब खत्म हो चुका होगा। जो साहिब तख्त अलूहियत था उसने फरमाया हमने हर चीज नई बना दी। मैंने उनकी तरफ निगाह की, उनके लिबास पर और रानों पर उनका नाम नोशता था, बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, किंग ऑफ द किंग, गॉड ऑफ द गॉड। इसके बाद एक अजीब सी बात है मगर बाइबल का हिस्सा है, और ये तो आप सब जानते हैं कि इन किताबों पर ईमान लाना इस्लाम की अव्वलीन शराइत में से है कि आखिरी शहनशाह मुअज्जम की हुकूमत कायम होने के बाद इसकी कैफियत क्या होगी। इस ज़िमन में फरमाते हैं कि परवरदिगार ने फैसला किया है कि आखिरी दौर में जब अब्दी हुकूमत होगी तब मैं रूहुल कुद्स को हर बदन पर बरसा दूंगा, और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत पर फायज होंगे, तुम्हारे नौजवान बच्चे भी मकाम मुशाहिदा पर होंगे, और जो तुम्हारे बूढ़े होंगे वो ख्वाब नबूवत से फैज़याब हो रहे होंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं मज़ीद मालूमात के साथ। हाँ, जाते जाते दुआ ज़रूर करते जाएं कि ऐ मेरे खालिक व मालिक, तू हम पर करम फरमा और अब मज़ीद देर न कर। वो वक्त हमें इन आँखों से दिखा जिसका वादा तूने अपने बरगुज़ीदा पैगम्बरों से किया है। हमें उन तमाम पैगम्बरों को बमा उनके जानिसार और मुखलिस नासिरीन के इस धरती पर आबाद व शाद दिखा, जिस मकसद अजीम के लिए उन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए, और जिस मकसद अजीम के लिए दुआए ताजील फरज की इब्तदा की गई, उन बानियान मकसद अजीम के पाक मकसद को अब पूरा फरमा, हुकूमत इलाहिया का क़याम फरमा। इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन।